Good morning, students. Uh, we were reading the chapter number 8, Reach for the Top. This story is about Santosh Yadav, who is a very brave girl and who wants to go further in her life, who wants to progress uh, in her life. And I am going to start 101, page number 101. Then there was no looking back for this determined young girl. Then this young girl did not look back afterwards, and she was a girl of firm mind. She was firm in her mind. She was determined. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering, where she got admission. She got admission in Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. Her academic session in Jaipur was to end in April, but it ended on 19th of May in place of April. And I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st, so I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. There was no time, only one day बचा था, और वो घर नहीं जा पाई क्योंकि 19 मई को तो उसका सेशन एंड हो रहा था अप्रैल की जगह, और 21 को उसको उत्तरकाशी में होना था, इसलिए वो वापस घर नहीं गई. घर जाने की जगह वो she headed straight for the training. She went towards training. I had to write a letter. Who is I here? I here is that girl, Santosh Yadav herself. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. उसने अपोलॉजी जो है का एक लेटर लिखा. अपोलॉजी मीन्स माफ़ी मांगी उस लेटर में कि उनसे बिना विदाउट देयर परमिशन, विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन, शी गॉट एडमिशन एट उत्तरकाशी. देयर आफ्टर Santosh went on expedition every year. And then afterwards, what happened? Santosh went on expedition. Expedition means a difficult assignment, or a long journey for some special purpose. That is called expedition. तो वो इस जर्नी, इस यात्रा को हर वर्ष, प्रतिवर्ष वो पूरा करती थी. Her climbing skills matured rapidly. Climbing skills means माउंटेनियरिंग की जो स्किल्स होती है, जो उसमें कौशल होता है, वो बहुत रैपिडली मीन्स स्पीडली, मैच्योर्ड मीन्स प्रोग्रेस करता गया, बढ़ता गया. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड. और उसकी जो कोल्ड यानी कि जिस तरह जितना हम पहाड़ पर ऊंचाई पर जाएंगे, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, जितना हाइट पर ऊपर बढ़ते जाएंगे उतनी ही ऑक्सीजन भी कम होती जाती है और कोल्ड बढ़ती है. समझ में आया ना? कोल्ड बढ़ती है. और इस सब को सहन करने की उसकी जो रेसिस्टेंस पावर होती है, रेसिस्टेंस पावर मीन्स फाइटिंग पावर अगेंस्ट समथिंग,
फाइटिंग पावर होती है ये, किसके अगेंस्ट में? कोल्ड और एल्टीट्यूड के अगेंस्ट में वो बढ़ती गई. इक्विप्ड विद एन आयरन विल. आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग विल. शी वॉज well decorated. Her feelings and her heart and her objectives were decorated with strong feeling, strong will, physical endurance and an amazing mental toughness. यानी कि फिजिकल एंडोरेंस भी उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई और अमेजिंग मेंटल टफनेस. टफनेस मीन्स हार्डनेस, मतलब उसका जो माइंड था वो भी एकदम स्ट्रांग हो गया कि ये काम उसको इसके अंदर कॉन्कर होना ही है, विनर बनना ही है. शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और वो बार बार अपने आप को प्रूव करती थी. द कल्मिनेशन मीन्स क्लाइमैक्स ऑफ हर हार्ड वर्क and sincerity came in 1992. और उसका जो हार्ड वर्क, बहुत कठिन परिश्रम का जो क्लाइमैक्स था वो कब आया? 1992 में, जब वो बिल्कुल एकदम क्लाइमैक्स पर थी, पीक पॉइंट पर थी. जस्ट 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. और 4 years में ही, यानी जो कुछ भी उसने अपना ये सफ़र, ये ट्रैवल शुरू किया, उसके 4 years के अंदर ही उसने अरावली माउंटेनियर्स को बड़े शर्म से और हेजिटेशन के साथ में बोला कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती थी. एट बेयरली 20 years of age, only 20 years of her age, Santosh Yadav scaled Mount Everest. Underline this. At the age of 20, she conquered the climbing of Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. Feat means notable act of adventure. इस बड़े ही साहसिक कार्य को करने वाली, यानी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की, सबसे छोटी उम्र की पहली महिला बनी. Her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors. Her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. देखो, अगर उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ उस अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी, तो उसका जो कंसर्न था, बड़ा एक इंटरेस्ट, कंसर्न मीन्स इंटरेस्ट, जो दूसरों के लिए था, और जो इच्छा काम करने की वो ये थी कि वो उनके साथ मिलकर काम करे. और फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, और उनके साथ मिल के काम करे और जो उसके साथ के जो क्लाइंबर्स थे उनके दिलों में वो जगह बना सके. During the 1992 Everest mission means Everest expedition, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Col. यानी 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही, यानी एक माउंटेनियर को पर्वतारोही की विशेष देखरेख की, जो साउथ कॉल की, यानी कि कॉल हियर मीन्स अ डीप पॉइंट बिटवीन
टू माउंटेन पीक्स, दो बड़े माउंटेन्स के बीच में जो गहरी खाई और वो उसे कह सकते हैं दर्रा पास वो निकलता है। तो उस साउथ पोल में बिल्कुल एकदम डेड पड़ा था, है ना, हाफ डेड। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम and she could not save him unfortunately. However, she managed to save another climber, Mohan Singh. However, फिर भी she managed to save another climber, मोहन सिंह। एक की वो उसने कोशिश करी, but she could not become successful in saving him, but she managed to save another climber named Mohan Singh, who would have met him with the same fate had she not shared her oxygen with him. और एक और पर्वतारोही यानी कि मोहन सिंह को बचाने में सफल हो गई, जो उसी फेट मीन्स हियर डेथ, उसी मृत्यु का शिकार हो सकता था यदि वो अपने ऑक्सीजन को उसके साथ नहीं बांटती। दिस शोज दैट शी वॉज अ काइंड हार्टेड लेडी, शी वॉज हैविंग अ हेल्पिंग नेचर। these two lines show her nature and character, कि वो दूसरों का ध्यान रखने में भी कितनी कंसर्न थी और वो कितना उनको भी सम्मान दिया करती थी, प्यार किया करती थी अपने साथ के क्लाइंबर्स को, कि उनका भी वो ध्यान रखती थी। ऐसा नहीं कि वो प्रोग्रेस कर रही थी और वो आगे बढ़ रही थी, सक्सेसफुल हो रही थी, तो वो अहंकार करने लग जाए और दूसरों का ध्यान ही नहीं रखे। ऐसी भी लेडी नहीं थी वो। तो ब्लेसिंग्स जो है गॉड ऐसों को ही देता है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चले, या उनके साथ उनको आगे लेके चलने की कोशिश करे, जैसे कि इसने इन दो व्यक्तियों के साथ की। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition. Within 12 months, she became a member of an Indo-Nepali women's expedition. This is the expedition group of women, और ये it was shared with India and Nepal that invited her to join them. इस ग्रुप ने उसको अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। She then scaled the Mount Everest a second time, and then she climbed that Everest second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. This record also goes in her name, that twice a lady has conquered Mount Everest. एक बार हो सकता है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो, लेकिन उसने 2 बार उसको स्केलिंग करने में, क्लाइंबिंग में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। और इस तरह से उसने अपने आप को जो है कि दूसरी बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और इस प्रकार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकमात्र महिला का कीर्तिमान स्थापित किया, और पर्वतारोहण के इतिहास में स्वयं के लिए और भारत के लिए एक यूनिक विच कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर, ओनली वंस एंड वंस, अद्वितीय यूनिक स्थान सुनिश्चित किया। उसकी उपलब्धियों के सम्मान में भारत सरकार ने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री उसे प्रदान किया। एंड
The Indian government also bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri, describing her feelings when she was literally on top of the world. Santosh has said it took some time for the enormity of the moment to sink in. जब literally means in a real way, जब वो संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर थी उस समय की अपनी फीलिंग्स का वो वर्णन करते हुए संतोष कहती हैं, क्या कहती हैं कि इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक, उस क्षण की महानता को समझने के लिए कुछ समय लगा. इट टुक सम टाइम मतलब कुछ समय लगा फॉर द एनॉर्मिटी. एनॉर्मिटी मीन्स विशालता, उस क्षण की विशालता. वो क्षण यानी कि मोमेंट, एक लम्हा जो आता है और चला जाता है, लेकिन उसकी महानता को समझने में उसे समय तो लगा. तत्पश्चात देन आई unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. और ठीक उसी समय मैंने भारतीय तिरंगा फहराया और इसे संसार की छत पर ऊंचा उठा लिया. रूफ ऑफ द वर्ल्ड, अलोफ्ट मीन्स ऊंचा. कहाँ? ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत यानी कि आसमान में. द फीलिंग इज indescribable. Indescribable means which cannot be described. That moment, that feeling cannot be described in some words. कुछ शब्दों में उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. वो इतना ब्लेसिंग वाला मोमेंट रहा होगा उसके लिए, और इतना बिल्कुल यूनिक मोमेंट था वो, कि जब उसने दूसरी बार एक फिर माउंट एवरेस्ट पे जाके इंडिया के ट्री कलर को हवा में अनफोल्ड किया, होइस्ट किया, लहराया. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट. इट वॉज अ डिवाइन मोमेंट फॉर हर. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. मैंने एक भारतीय होने पर गर्व महसूस किया. ऑल्सो ऑफ फर्वेंट. फर्वेंट हियर मीन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स. ऑल्सो ऑफ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट. संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज. और मैंने भारतीय होने का गर्व महसूस किया. संतोष जो एक उत्साही पर्यावरणविद भी थी. एनवायरमेंटलिस्ट मीन्स जो पर्यावरण को के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. एक्सपर्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट इज़ कॉल्ड पर्यावरणविद. उसने हिमालय से 500 किलोग्राम कूड़ा कचरा इकट्ठा किया और इसे नीचे लेकर के आई. दिस इज़ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ संतोष यादव, एंड वी कैन बी इंस्पायर्ड of our life and of our struggles. Okay, so I hope you would have understood this chapter, this story very well. Now learn the word meanings, and you can do question answers. I will send its question answers in the next video, and you can do. Okay, thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.